And before calling to our consultant from Regional Center Udaipur to address you, to welcome you, I wish to share few points. That is, we can say limitation of the program also. कुछ हमारी सीमाएं भी हैं इस प्रोग्राम्स के. जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात आ रही है पिछले प्रोग्राम्स में, वो आ रही है अटेंडेंस की. If we registered 150 teachers in this program, we registered 230 teachers till now. बट बाद में क्या होता है, अलग अलग रीजन से, कारणों से कुछ टीचर्स दिन में कभी कुछ दिनों डिक्लाइन कर जाते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, कारण जो भी हो. तब जो एब्सेंट हो जाते हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं? तो जो एब्सेंट हो जाते हैं उनका ऑप्शन नहीं है कि हम उन्हें सर्टिफिकेट दे पाएंगे. Therefore, I request you to kindly be with us, attend the program as you have been deputed from your state government, your authority, to attend the all 5 days program. So make attempts to join us all 5 days so that we can provide you the certificate accordingly. ठीक है, आप लोग पूरे 5 दिन अच्छे से प्रोग्राम अटेंड करें, और प्रोग्राम कंप्लीशन के साथ में प्रोग्राम के दौरान आपको रेगुलर हमारे कलीग है वो इंस्ट्रक्शंस देते रहेंगे. हमारे रीजनल सेंटर उदयपुर में a very senior administrative authority is there. हमारे कंसल्टेंट श्री दिनेश कोठारी जी हैं. अभी वो आपको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम, इस वर्कशॉप के उद्देश्य आपको एक्सप्लेन करेंगे, आपको उसके बारे में बताएंगे. तो मैं स्वागत करता हूं सर आपका. सर कोठारी, ओवर टू यू. थैंक यू सर. सबसे पहले मैं आप सभी का इस वर्कशॉप में हार्दिक स्वागत करना चाह रहा हूं, और आदरणीय संदीप शर्मा जी, उपनिदेशक जी, श्रीमती सलोनी प्रिया, और हमारे जो सारे एक्सपर्ट विशेषज्ञ आज जो इस कार्यशाला में भाग लेंगे, और आप सभी प्रतिभागी शिक्षक महानुभावों का इस कार्यशाला में हार्दिक स्वागत है. मैं इस अवसर पर इस संस्थान की चेयरपर्सन डॉक्टर हेमलता एस मोहन और निदेशक ऋषि कुमार जी वशिष्ठ का भी स्वागत करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा. तो उन्होंने इस वर्कशॉप को पूरा संबल दिया, और खुशी की बात यह है कि इसके समापन के अवसर पर वो हमारे बीच रहेंगे और हमें संबोधित भी करेंगे. I extend my heartily welcome to all of you, especially Deputy Director Shri Sandeep Sharma ji, Saloni Priya ji, all our dignitaries, my experts. I am grateful to that CCRT Chairperson Srimati Hemlata S. Mohan and Director Rishi Kumar ji Vasisht to supporting and facilitating the workshop and virtual presence at the completion time. Thank you. And as assigned me that aims and objective of this workshop, I would like to say something about aims and objective of this workshop. To create an awareness about Indian culture, its continuity, its diversity, its richness, with an objective to instill in all educators and through them to students a pride of national heritage. To provide an opportunity to educate, sensitize and motivate in service teachers and educationists in view of national education policy. Third one, to create an understanding of the need of cultural education and create action plan for carry in their classroom. As such, we need to ensure that children from different sections of the society recognize the strength of their own ethos and build up on those. To acquaint teachers with innovative teaching pedagogy, inspire them to use technology and digital method of learning, incorporating culture component in classroom teaching. Other one,
to develop understanding and relevance of regional language, Swachh Bharat Mission and Rashtrabhasha Niti for today's youth. We need to increase learning of our traditional, folk, classical and contemporary art form to use rich Indian heritage for value education, life skill development also. We can say to develop understanding and relevance of regional language also, it is a main issue in India. And we can say the broad objective of this workshop to suggest way of enhancing the quality of cultural awareness among the school going children. मैं थोड़ा आपको इसके बारे में हिंदी में भी बता दूं। इस कार्यशाला का उद्देश्य भारतीय संस्कृति, उसकी निरंतरता, इसका सनातन स्वरूप, उसकी समृद्धि, उसकी ग्राह्यता, उसकी विविधता, डाइवर्सिटी, उसके बारे में हमारे शिक्षकों को और शिक्षकों के माध्यम से हमारे छात्रों को उससे रूबरू कराना है, ताकि हमारी जो विरासत है, एक समृद्ध विरासत है, उसको लेकर ये छात्र स्टूडेंट गर्व महसूस कर सके, गर्वित हो सके। हमारी जो नई शिक्षा नीति है काफ़ी होलिस्टिक है, बहुत व्यापक है, उसमें कई सारे स्कोप है, पूर्व के मुकाबले बहुत सारी नई चीज़ें उसमें शामिल की गई है। उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में हमारे शिक्षकों को जागरूक किया जा सके, सांस्कृतिक शिक्षण को अधिक रुचिकर बनाया जा सके, ताकि वो जो क्लासरूम अल्टीमेटली जहाँ छात्रों को हमें उसको डिलीवर करना है, उससे कक्षा कक्ष तक वो चीज़ पहुँचे और छात्रों के लिए उपयोगी हो। शिक्षकों को शिक्षण में आए जो भी नवाचार हैं उनसे रूबरू कराना, चाहे वो नई तकनीक के मामले हो, चाहे डिजिटल मेथड हो, और किसी तरह का नई कहीं कुछ जिलों में, कुछ स्कूलों में, कुछ राज्यों में जो भी नवाचार हुए हैं वो आप लोगों के बीच आपसे डायलॉग से वो आगे बढ़ेंगे और वो छात्रों के लिए अधिक उपयोगी साबित होंगे। हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं जो विभिन्न विषयों में आम प्रचलन में है, उन क्षेत्रीय भाषाओं की प्रासंगिकता, उसकी उपादेयता के बारे में हम आपसी समझ को विकसित कर सके, ये भी इस वर्कशॉप का उद्देश्य है। राष्ट्रभाषा, स्वच्छ भारत मिशन, उसको लेकर जागरूकता विकसित करना, ये भी हमारे एक वर्कशॉप का हिस्सा है। और समृद्ध भारतीय जो विरासत है उसका नैतिक मूल्यपरक शिक्षा और शिक्षण में, जीवन कौशल के विकास में किस तरह उपयोग किया जाए, ये भी इस वर्कशॉप में सामने आएगा। इस वर्कशॉप में गांधीवादी शिक्षा के ऊपर भी एक उद्बोधन होगा। और जैसा कि भारतीय भाषाओं को अभी हमारी नई शिक्षा नीति में बहुत सम्मान दिया गया है, बहुत जगह दी गई है, जो गांधीवादी शिक्षा है उसमें भी जो मुख्य चीज़ है वो ये है कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में होनी चाहिए, यही हमारी नई शिक्षा नीति भी कहती है। और ये कुछ बातें हैं जो हम आप शिक्षकों के साथ बांटना चाहते हैं, उनके साथ चर्चा करना चाहते हैं, और इसीलिए आगामी दिनों में हमारे 9 एक्सपर्ट आपके बीच इसके बारे में बात करेंगे। और हम चाहते हैं कि यहाँ से जो भी आप सीख के जाएँ, अपने छात्रों को, अपने विद्यार्थियों को ये बताएं, ताकि ये वर्कशॉप बहुत अधिक उपयोगी साबित हो सके। तो ये कुछ बात थी एम्स और ऑब्जेक्टिव को लेकर जो मैंने आपसे साझा की। आई एम शेयर विथ यू, ऑल ऑफ यू, एंड नाउ थैंक यू। मैं दोबारा संदीप शर्मा साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया आपको। थैंक यू सर। थैंक यू कोठारी सर, आपने काफी विस्तृत में डिस्क्रिप्टिव पूरा डिटेल जानकारी दे दिया हमारे टीचर्स को। He has described about our objectives of the workshop in detail. And now friends, if you see today's program schedule, I hope you have received already the program schedule. आप लोगों को डे टू डे प्रोग्राम शेड्यूल व्हाट्सएप ग्रुप में मिल चुका है। अगर आप उसको देखें तो डे फर्स्ट हमारे 2 डिस्कशन हैं, 2 लेक्चर्स हैं, जिसमें अभी पहला जो है मेरे साथ ही है डिस्कशन, वो इंट्रोडक्शन टू कल्चर, एट्रीब्यूट्स एंड कंपोनेंट इन इंडियन पर्सपेक्टिव। और दूसरा जो सेशन होगा वो मेरी कलीग होंगी मैडम सलोनी प्रिया,
वो होगा टीचर्स एज एम्बेसडर ऑफ कल्चरल एजुकेशन, मेंटल हेल्थ फॉर एजुकेटर्स एज पर NEP गाइडलाइन। सो बोथ द लेक्चर इज वेरी रिलेवेंट। अब हम इससे पहले कि लेक्चर स्टार्ट करें, मैं रंजय जी से रिक्वेस्ट करूंगा, when we assembled physical mode training programs, huge number of teachers, 100, 200, in a teaching hall, we have generally prayer in our CCRT, हमारा ट्रेडिशन रहा है। तो इस बार भी हम लोग मिस कर रहे थे कुछ प्रोग्राम्स में, जब प्रेयर पहले नहीं हो रहे थे, तो हमने एक प्रेयर डाउनलोड किया। और मैं रंजय जी से रिक्वेस्ट करूंगा, सर्वधर्म प्रार्थना है, आप सब लोग भी अनम्यूट कर लें और हम सब एक साथ प्रेयर करें। ये समय भी है कोरोना का, पेंडेमिक का, कि हमें प्रेयर करने की आवश्यकता है। रंजय जी प्लीज प्रेयर ऑन कर दें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी सर। लगा दिया। स्पीकर बंद हुआ है। नहीं सर, आगे चलो। करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा, तू ही राम है। तेरी जात पाक कुरान में, तेरा दर्श वेद कुरान में, तेरी जात पाक कुरान में, तेरा दर्श वेद कुरान में, गुरु ग्रंथ जी के बखान में, गुरु ग्रंथ जी के बखान में, तू प्रकाश अपना दिखा रहा, तू प्रकाश अपना दिखा रहा, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा, तू ही राम है।
थैंक यू एवरीवन। सभी लोग अनम्यूट कर लें प्लीज अपनी माइक। रंजय जी, आप पावर पॉइंट अरेंज कर दें प्लीज। जी सर। डियर टीचर्स, ये जो प्रेयर था ये यमन राग में है। यमन राग आप जानते हैं, हमारे संगीत विधा में एक राग है जिससे बहुत सारे प्रेयर्स बनते हैं, गाने बनते हैं। और यमन राग को प्रेम का राग, भक्ति का राग माना जाता है ना। इसीलिए प्रेयर यमन राग में था। और हम जब इसको सुनते हैं तो हमारा मन कुछ पलों के लिए शांत हो जाता है। और ये डिवाइस का कमाल है, मॉडर्न साइंस का कमाल है कि हम लोग अपने अपने घरों में डिजिटल पार्ट में कहीं भी बैठ के एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। अभी 2 मिनट के अंदर में रंजय जी हमें एक पावर पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे द बेसिक क्वेरी, दैट इज व्हाट इज कल्चर। संस्कृति क्या है। हम बिल्कुल बेसिक्स पे जाएंगे। जैसे मैंने जो टॉपिक रखा वो इंट्रोडक्शन टू कल्चर, नेचर, एट्रीब्यूट्स एंड कंपोनेंट। सुनने में बड़ा टिपिकल सा स्टडी मैटर लग रहा है कि भाई नेचर क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, जैसे बुक्स में होते हैं। बट मैं कॉमन लैंग्वेज में आपको बता दूं, इस टॉपिक को अगर हम कहें बेसिक्स ऑफ कल्चर। और इस सब्जेक्ट का रीजनल क्या है कि आपके बीच में ये टॉपिक डिस्कस करूं, क्यों करना है। आप सभी अलग अलग बैकग्राउंड, स्टडी बैकग्राउंड के टीचर्स हैं। रंजय जी, अगर पॉसिबल हो तो मुझे कुछ पार्टिसिपेंट्स में देख पाऊं, कम से कम 5-6, जिससे कि इंटरेक्शन इस्टेब्लिश होगा उनके साथ में। वो आप कर लें अरेंज, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं। तो जो टॉपिक बनता है वो बेसिक्स ऑफ कल्चर, संस्कृति क्या है। इसमें आप सभी भी जानते हैं कि संस्कृति क्या है। सबके यहाँ अपने अपने तरीके से हम डिफाइन करते हैं, अपनी भाषा में, अपने तरीके से। और कोई भी डेफिनेशन जो हमारी सोसाइटी तय करती है या हम तय करते हैं, उसमें रॉन्ग कहीं पे नहीं है। सभी जगह संस्कृति को किसी न किसी रूप में हम अच्छे तरीके से जानते हैं, समझते हैं। बट जब हम कल्चरल स्टडीज में आते हैं, हायर स्टडीज में, ये सब सब्जेक्ट डिवाइडेड हैं। ऐसे नहीं, फेस दिखना चाहिए। जब हम हायर स्टडीज में जाते हैं तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिस्ट्री के अंदर में आप कल्चरल स्टडीज करते हैं, लैंग्वेज लिटरेचर में करते हैं, एथनोग्राफी में करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं। फिर कल्चरल स्टडीज में, जो कि अभी पूरा पूरा एक सब्जेक्ट के रूप में हमारे कंट्री में भी एस्टैब्लिश हो चुका है, वो है कल्चरल स्टडीज, है ना। तो स्टार्ट जो हम करें, आप लोग बड़े शांत शांत से हैं, थोड़ा स्माइल करने से अच्छा लगेगा। जो भी हालात हैं, सर्कमस्टेंसेस हैं, कोई बात नहीं। मैं चाहूंगा एक दूसरे को देख के हम लोग थोड़ा तो स्माइल करें। बनता है कि हमने डिफीट किया है कोरोना को, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, और पता नहीं कितने बार। मैं सही कह रहा हूं? हमारे घरों में, आसपास में हम लोगों ने डिफीट किया है, मीन्स वी आर विनर्स। तो क्यों ना चेहरे में एक स्माइल हो। हालात तो चलते रहते हैं, स्माइल के साथ हमारा एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है, हम ज्यादा चीजों को समझ पाते हैं और अंदर एक इनर सेटिस्फेक्शन भी आता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक स्माइल के साथ हम आगे बढ़ें। अब मैं आप लोगों को देख भी सकता हूं, और अगर मेरा पावर पॉइंट भी दिखता रहे रंजय जी हाफ में स्क्रीन में, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। रंजय जी अरेंजमेंट कर रहे हैं, तब तक पावर पॉइंट का हाफ में दिखेगा, आप लोग भी मुझे दिखेंगे। मैं आप लोग से जानना चाहता हूं, जैसे अलग अलग क्षेत्रों में हम अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं कल्चर को। तो मेरा क्वेश्चन, हम लोग दोनों लैंग्वेज डील करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में, वर्किंग हिंदी, वर्किंग इंग्लिश।
दोनों हमारे बीच काम करता है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप हिंदी में अगर कहें तो संस्कृति क्या है, कुछ शब्दों में कोशिश करें, कुछ लाइनों में। तो सुनाई दे रही है मेरी बात? और इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। पीपल फ्रॉम साउथ, फ्रॉम तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, टीचर्स आर विथ अस। यू कैन टेल मी in few words only what you think, what is culture, not from book, that your perception you can share with us. अच्छा लगेगा आप हम बातें करें थोड़ा सा, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। सर मैं Teachers कुछ and कहना चाहता हूँ संस्कृति के विषय में। कहें कहें सर प्लीज। एक संस्कृति होती है, एक सभ्यता होती है। सभ्यता आपके विचारों को, आपकी भाषा को व्यक्त करती कंटिन्यू कंटिन्यू करें सर, आपकी आवाज आ रही है। है। वो सभ्यता वैज्ञानिक तौर पर रहकर मैं बोलना चाहती हूँ। हेलो जी बोलिए मैम। सर मैं बोलूं? हाँ, संस्कृति जो है हमारे जीवन जीने का नाम है। जिस तरह हम अपनी जीवन को जीते हैं, वेरी गुड। उसी को जीवन हम जीने संस्कृति का कहते नाम हैं। है जीवन का कल जी। संस्कृति अब उसमें सारे आयाम आ जाएंगे, चाहे आप नैतिक हो, भौतिक हो, रहन सहन, खान पान। और यही संस्कृति अलग अलग जगह की अलग होगी। अगर हम यूरोप की देखें, मिस्र की देखें, हर जगह की संस्कृति अलग होगी, क्योंकि वहां के रहन सहन और हर चीज अलग होगी। वेरी एक गुड। साधारण चलिए, मैम ने काफी अच्छे से डिफाइन कर दिया। एक और लेते हैं, ये सर इंटरेक्शन मैं का कुछ थोड़ा कहना problem- चाहता हूँ संस्कृति के विषय में। जी काइंडली कहें सर। विजय शंकर सर, यस सर। विजय शंकर सर वेलकम। सर सभी विद्वतजनों को, इस मीटिंग में जुड़े हुए आदरणीय विद्वतजनों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार एवं अभिवादन। मैं विजय शंकर बिलासपुर छत्तीसगढ़ से संस्कृति के विषय में कुछ बोलना चाहता हूँ। बताएं बताएं सर प्लीज। भारत एक आर्यावर्त का देश है, आर्यों का देश है, जिसमें सभ्यता और संस्कृति दोनों एक दूसरे के पूरक। संस्कृति वह है जो हमें हमारे न जाने कितने हजारों लाखों वर्षों पहले से मिली हुई है, और उस संस्कृति का निर्वहन करना समस्त भारतीयों का परम कर्तव्य होता है, क्योंकि संस्कृति के बिना जीवन पूर्णतः मनुष्य का अधूरा ही कहा जाएगा। जैसे हम अपने गुरुजनों का, अपने बड़ों का, समाज के लोगों का जो हम आदर सत्कार, और अपने कलीग्स को जो हम एक अच्छा रास्ता दिखाते हैं, वो हमारे संस्कृति का एक हिस्सा है। और उसी संस्कृति से सभ्यता का जन्म होता है। तो संस्कृति जो है वो सभ्यता से बड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण मानव जाति को संस्कृति का अनुसरण करना अत्यंत अनिवार्य है। संस्कृति से ही हमारे नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक विचारों का विकास होता है, और यही हमें अपने आने वाले समय के लिए, आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, जिससे हमें आत्मबल और हमें आत्म सम्मान भी मिलता है दूसरों के द्वारा। यह ऐसा मेरा मानना है। नमस्कार। वेरी गुड। शंकर सर ने बहुत विस्तृत में कहा, मैम ने भी कहा। अब समय की सीमाएं हैं, मैं आगे बढ़ता हूं, नहीं तो ये डिस्कशन पूरा नहीं होगा। थैंक यू एवरीवन। आप सभी जानते हैं संस्कृति के बारे में, हमें जानकारी है कि आपके पास नॉलेज भरपूर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके आगे जानते हैं क्या है, और पहले भारतीय संस्कृति से पहले संस्कृति क्या है उस पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू। आप अनम्यूट करें काइंडली। जैसा कि मेरे दो टीचर साथियों ने बताया,
कि संस्कृति क्या है। अगर हम अलग अलग टाइम में अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा या अलग अलग संस्कृतिविदों के द्वारा जो जानकारी दी गई उसको शामिल करें तो चारों डायरेक्शन से जो हमारे पास बातें आती है संस्कृति के बारे में, आपके बीच में जो सहमति आती है, आपके बीच में जो कंसेंसस आता है, वही बातें सामने आती हैं और हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कोशिश किया है कुछ डेफिनेशंस को लेने का, है ना। उस डेफिनेशंस को लें हम। इसमें अगर हम देखें जो विश्व में सभी जगह एक्सेप्ट किया जाता है, सभी जगह में इसको मान्यता प्राप्त है, उस महत्वपूर्ण परिभाषा को लें। जैसे आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हर एक सब्जेक्ट में किसी चीज को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वी ऑल कंसर्न टू स्टडीज, सो वी हैव टू हैव कम अप विथ वर्ड एंड सेंटेंसेस टू डिफाइन। तो कोशिश करते हैं, वैसे तो कठिन है इस चीज को समझा पाना। कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल। सर ईबी टाइलर कहते हैं, ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ, art, moral, law, customs, and other capabilities acquired by a man as member of human society. मैं अगर इसको ट्रांसलेट कर दूं हिंदी में, मानव समाज के सदस्य होने के नाते इंसान ने जो ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, विज्ञान, रिचुअल्स, कस्टम और जो क्षमताएं उपार्जित की हैं, वो सभी चीजों को मिलाकर हम संस्कृति के स्वरूप में उसको मानते हैं या देखते हैं। ये एक जटिल प्रक्रिया के रूप में हमारे सामने रहती है और इसी माध्यम से हम जीते हैं। दूसरा, अगर एक ही डेफिनेशन हम और ले लें, डेफिनेशंस तो बहुत सारे हैं। कल्चर इज द एक्सप्रेशन ऑफ आवर नेचर। प्रकृति हमारे संस्कृति को डिफाइन करती है। मैकाइवर सोशियोलॉजिस्ट हैं, फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं, इनके बुक्स आपको सोसाइटी करके मार्केट में मिलेगी और यूनिवर्सिटीज में लोग हमारे पढ़ते हैं इसको। कल्चर इज द एक्सप्रेशन ऑफ आवर नेचर इन आवर मोड्स ऑफ लिविंग एंड आवर थिंकिंग, इन आवर लिटरेचर, इन रिलीजन, इन रिक्रिएशन एंड एंजॉयमेंट। ये सारे कंपोनेंट्स में आप देखेंगे कि हमारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं वही हमारी संस्कृति है। मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ, किस तरीके से मैं खाना खाता हूँ, है ना, स्पून से खाता हूँ या हाथ से खाता हूँ, वो जो एक्सप्रेशंस हैं हमारे वे ऑफ लाइफ के, जो हम लिटरेचर में पढ़ते हैं। जब मेवाड़ की बात आती है, हल्दी घाटी की बात आती है, तो हल्दी घाटी कहते कि हमारे रगों में वीर रस दौड़ने लगता है ना। तो वो प्रभाव है राजस्थान की संस्कृति का कि वो एक्सप्रेशन अपने आप हमारे अंदर पैदा हो जाती है। ये मैकाइवर साहब कहते हैं, है ना। मैकाइवर साहब हमारे राजस्थान में नहीं आए, लेकिन इसको हम कहते हैं साइकिक यूनिटी। जब हम किसी चीज को विचार मंथन करते हैं तो ये ब्रेन की बात है, कहीं भी बैठ के चीजों को समझा जा सकता है, देखा जा सकता है और उसको स्टडी की जा सकती है। तो मैकाइवर साहब संस्कृति की परिभाषा इस तरीके से देते हैं। और अभी जैसे हमने परिभाषा देखा, अगर आप देखें एट ए होल, सभी एनिमल्स के पास संस्कृति नहीं है टीचर्स। संस्कृति केवल इंसान के पास है, मानव जीव के पास है, ह्यूमन स्पीसीज के पास है। क्यों? आपने कभी सोचा? आप सोचिएगा, ठीक है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे रहा हूं, बेसिक पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स। ये 5 पॉइंट साइंस के हैं, बट इसको हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए, जिससे ये समझ में आता है कि मानव ने संस्कृति कैसे डेवलप किया, हाउ वी एक्वायर्ड कल्चर एंड बिकम द डोमिनेंट ऑन दिस अर्थ। इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा प्रभावी जीव के रूप में इंसान प्रकट हुआ और सभी पे रूल करता है ना। वो कैसे संभव हुआ? वो संस्कृति के माध्यम से संभव हुआ। और वो संस्कृति हम कैसे एक्वायर करते हैं, उसके बेसिक पॉइंट आप देखें तो जिस तरीके से सभी एनिमल्स थे, वैसे इस प्रकृति में इंसान भी आए। इंसान ने हजारों लाखों वर्ष में धीरे धीरे दोनों पैरों से चलना शुरू किया है। साइंस की बात है, थोड़ा 2-3 पॉइंट मैं आपको लूंगा।
जो बहुत इंपॉर्टेंट है संस्कृति को समझने के लिए। धीरे धीरे 2 पैरों में आने के बाद वो सीधा खड़े होना सीखा। जब सीधे खड़े होना सीखा तो उसके शरीर में अनेक परिवर्तन हुए। There were so many changes in human body, in skeleton system, and after having thousands of years, we acquired this body composition. कि हम 2 पैरों से खड़े हो गए, 2 हाथ हमारे ये फ्री हो गए और काम को करने के लिए। और इसके साथ साथ बहुत सारे हैं जो डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा, कॉमन मैन है जो हम बातें करेंगे। तो इससे हमारे शारीरिक परिवर्तन हुए और जिससे संस्कृति को हमने एक्वायर किया। तो दूसरा पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा। पहला आया 2 पैरों से चलना, फिर सीधे होके रहना, खड़े होना। और दूसरा जो पॉइंट है ये देखिए अंगूठा, इसको टेक्निकल वर्ड में कहते हैं अपोजेबल हेलक्स। ये सभी चारों उंगलियों के अपोजिट में है ये। तो आपको धनुष, तीर धनुष चलाना है। इफ यू विश टू यूज बो एंड एरो, यू नीड दिस थंब। ये थंब आपको चाहिए। इस थंब के बिना आप बो एंड एरो चलाने में ट्रबल होगा आपको। या आपको कोई आर्टिस्टिक काम करना है, कोई पेंटिंग करना है या कैलीग्राफिक राइटिंग करना है, तो आपको थंब अपोजिट में आपको मदद करता है पेन को ग्रिप करने में। या आपको कोई हैवी वर्क भी करना है तो आपको ग्रिप करने में ये थंब बिल्कुल अपोजिट में होता है चारों के, और ये आपको हेल्प करता है। सो इज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू डेवलप आवर कल्चर। इसीलिए आपने सोचा होगा, आपने देखा होगा हमारे हिस्ट्री में एक घटना हुई थी, जो एकलव्य से जब उसको उसकी कैपेबिलिटीज को कम करना था तो उनके गुरु ने क्या मांगा, दक्षिणा में उनका थंब मांग लिया, सो दैट वो कोई टूल्स आगे यूज नहीं कर पाएंगे, वो धनुष नहीं चला पाएंगे। तो हमको समझ में आता है इस थंब का रोल क्या है। ठीक है, तो ये अपोजिट में थंब आया। बाकी एनिमल्स में आप देखेंगे ये इसके साथ यूज होता है। अब हमारी आंखें, आप देखिए हमारे 2 आंखें सामने की ओर है, इसको कहते हैं स्टीरियोस्कोपिक आईज। फिजिक्स में स्टीरियोस्कोपिक का मतलब होता है 3 डायमेंशनल। आप 3 डायमेंशन को एक साथ देख सकते हैं, अदर एनिमल्स नहीं देख पाते हैं। इसीलिए पोचर्स जो होते हैं गड्ढे बनाते हैं और बड़े बड़े एनिमल्स को पकड़ लेते हैं, है ना, क्योंकि वो 3 डायमेंशन को एक साथ नहीं देख पाते हैं, इंसान देख पाता है। चलिए मैं जल्दी जल्दी इसको खत्म करता हूँ साइंस के पॉइंट्स को। इसीलिए स्टीरियोस्कोपिक विजन। सेकंड पॉइंट है क्रोमेटिक विजन है, हम कलर्स को पहचान सकते हैं। आप पुलिस भर्ती में, रेलवे में गए होंगे, आपकी एक जांच हुई होगी जिसको कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट कहते हैं। आर्मी में, पुलिस में भर्ती नहीं होता अगर आप हरे और लाल रंग को नहीं पहचानते। मीन्स ह्यूमन स्पीसीज की जो आंखें हैं वो कलर को देख पाती हैं, बाकी कुछ लोअर एनिमल्स कलर को नहीं पहचानते, उनको ग्रे दिखाई देता है। तो ये हमारी आंखों की विशेषता है। ठीक है, और नेक्स्ट है बाइनोकुलर। हम अपनी आंखों से चीजों को बाइनोकुलर लगा के, ग्लास लगा के बड़े भी कर सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, डेवलप्ड ब्रेन, विकसित मस्तिष्क। इंसान के पास जो केमिकल रिएक्शन और विकसित मस्तिष्क है, उतना डेवलप मस्तिष्क किसी के पास नहीं है। सो इट्स ऑल अबाउट ब्रेन कहते हैं हम जब ज्ञान की बात आती है। अभी भी हम 30 से 40% ह्यूमन ब्रेन के बारे में नहीं जानते हैं, जो साइकोलॉजी के लोग आपको बता सकते हैं। मेरी कलीग नेक्स्ट लेक्चर में जो आएंगी वो साइकोलॉजी से हैं, वो आपको कुछ हद तक एक्सप्लेन कर पाएंगे बाद में कभी। तो डेवलप्ड ब्रेन है इंसान के पास, जो किसी और एनिमल के पास नहीं है। और इन सब के कोऑर्डिनेशन से हमने हमारे गले में स्पेसिफिक वोकल कॉर्ड डेवलप किया, जिससे कम्युनिकेशन, different sounds we can create, and from that sounds we connect different sounds and we develop
सर्टेन लैंग्वेजेज, हम कुछ भाषाओं को बना पाए और एक दूसरे तक कम्युनिकेट करके उसको लिगेसी के रूप में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को सिखा पाए। ये कुछ विशेषताएं हैं जिसकी वजह से हमने संस्कृति को एक्वायर किया और जिसकी वजह से संस्कृति की वजह से हम लोग डोमिनेंट एनिमल होके फिर धीरे धीरे कल्चरल एनिमल बने। थॉमसन कहते हैं मैन इज द टूल मेकिंग एनिमल। सिंस हिस्ट्री, फ्रॉम प्री हिस्ट्री, वी आर इंटरेस्टेड टू मेकिंग टूल्स। पहले हम पत्थरों के टूल्स बनाते थे, आजकल हम लोग एटम बम में बिलीव करते हैं, एटॉमिक एनर्जी में बिलीव करते हैं, बट अल्टीमेटली हमारा इंटरेस्ट कहाँ चला जाता है? टूल्स में, है ना? ये ह्यूमन नेचर है। आप देखिए, पीस इस्टेब्लिश करना हो तो भी टूल्स का जरूरत होता है और वार करना हो तो भी टूल्स का जरूरत होता है। तो ह्यूमन स्पीसीज हमेशा टूल्स के पीछे वो रिसर्च करते रहते कि क्या टूल्स होगा। अब संस्कृति की हमने परिभाषा देखी। आप जरूर चाहेंगे आप राजस्थान की संस्कृति को, केरला की संस्कृति को, आसाम की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को स्टडी करना चाहेंगे। एज टीचर, एज knowledgeable fellow, you wish to study your local native culture. NEP, हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहते हैं कि नेटिव कल्चर को हमको क्लासरूम में लेके आना है। उसको टीचर तब स्टडी कर पाएंगे जब उनको मेथड्स पता होगा और कल्चरल कंपोनेंट पता होगा कि संस्कृति क्या है और भारतीय संस्कृति क्या है और हमारी लोकल संस्कृति क्या है। तो वो CCRT के माध्यम से काफी मटेरियल्स भी आपको मिलेंगे और CCRT के माध्यम से हमारे डिफरेंट रिसोर्स पर्सन आपको टाइम टू टाइम अवेयर करते रहेंगे और सोसाइटी के थ्रू ऑलरेडी आप अवेयर हैं संस्कृति के बारे में। तो कुछ हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, देयर आर सर्टेन एट्रीब्यूट्स, कुछ संस्कृति की विशेषताएं हैं। अगर हम एक एक करके देखें और समय की लिमिटेशन को देख के जब आप हमारे साथ आते हैं तो 1.5 घंटे 2 घंटे का प्रॉपर डिस्कशन होता है। मैं इसको थोड़ा फास्ट चलूंगा। कल्चर इज लर्नेड बिहेवियर। संस्कृति जो है सीखी जाती है, सीखे हुए व्यवहार को हम संस्कृति कहते हैं। अगर आप देखें, एक इंडिविजुअल से कभी भी संस्कृति नहीं बनती, शंकर सर, है ना? एक इंसान से संस्कृति नहीं बनती। हाँ, उस संस्कृति का वो रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है लेकिन वो संस्कृति बना नहीं सकता, है ना? तो ये हम अपनी सोसाइटी से, अपने आसपास से, अपने परिवार से सीखते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसी स्कूल में नहीं सीखते, ये हमें पेरेंट्स सिखाते हैं और हम फैमिली से सीखते हैं। इट इज इंटायरली फैमिली मैटर्स। आप MA कर लीजिए, PhD कर लीजिए, पोस्ट डॉक्टरल कर लीजिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लर्नेड बिहेवियर है वो फैमिली से ही आएगी कि मुझे जिम्मेदारी का वहन कैसे करना है, पंक्चुअल रहना है, नहीं रहना है। वो कुछ चीजें हैं जो हमें परिवार से मिलती हैं। तो ऑब्वियस कल्चर इज लर्नेड। संस्कृति सीखे हुए व्यवहार का एक कंपोजिशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें, कल्चर हैज ट्रांसमिसिव क्वालिटी। संस्कृति को हम एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जा सकते हैं। भारत की संस्कृति की तो यही विशेषता है। अगर आप एक हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सबके शादियों में शहनाई बजती है। अब किसके किसके में बजी थी आप लोग जानते हैं शहनाई? सब स्माइल कर रहे हैं, देखिए मैरिज को याद करके, है ना? टीचर्स आपके मैरिजेज में शहनाई बजी थी। एट डिफरेंट प्लेसेस वी नेम दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट in different way. Like in Tamil Nadu, even today we say नादस्वरम। शहनाई जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम नादस्वरम कहते हैं। If you go back 10,000 years and look at prehistoric impressions at Raisen district, Bhopal, Bhimbetka, there is also musical instruments using by our people. I like to
नादस्वरम, शहनाई और नादस्वरम की तरह हमारे प्री हिस्ट्री में 10,000 साल पहले भी इंडियंस यूज करते थे। तो सोचिए कितना रिच लिगेसी और हेरिटेज है हमारी भारतीय संस्कृति की। और एक तो आप सब जानते हैं कि डाइवर्सिटी की वजह से हमारा देश सभी लोग पसंद करते हैं, सभी लोग चाहते हैं, विश्व में लोग भारतीय संस्कृति की तारीफ करते हैं, यहाँ को जीना चाहते हैं, यहाँ को देखना चाहते हैं। लेकिन दूसरा जो टर्म है वो है कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर। 10,000 साल से और बीइंग प्री हिस्टोरियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मैं तो कह सकता हूँ लाखों साल पहले से। 10,000 का एविडेंस तो हमारा ये भीमबेटका का है, उससे पहले के लाखों साल के एविडेंसेस तो हमारे तमिलनाडु में और भारत के कई जगहों में गढ़े हुए हैं। अभी राखी गढ़ी के डीएनए के मॉडल्स भी आ रहे हैं हमारे पास। तो हम हजारों से अब लाखों साल की संस्कृति की तरफ धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो इट इज ट्रांसमिसिव। संस्कृति जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा सकती है। दूसरा है डिस्टिंक्टिव फ्रॉम द एवरी सोसाइटी। हर एक संस्कृति की अपनी अलग पहचान है। मैं सही कह रहा हूं? अगर राजस्थान की संस्कृति देखें तो वहां के इन्वायरमेंट के अनुसार इट इज द कोपिंग स्ट्रेटजी अगेंस्ट द इन्वायरमेंट। हमने वहां की संस्कृति अलग तरीके से विकसित की है। आसाम की संस्कृति बिल्कुल अलग है हमारे राजस्थान की संस्कृति से, लेकिन दोनों बिल्कुल विशेष है, दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों इक्वल है, दोनों डिग्निफाइड है, दोनों कलरफुल है ना। सेम अगर आप ऊपर में जाएं, नॉर्दर्न इंडिया दिल्ली से ऊपर, और फिर तमिलनाडु केरला में जाएं, कल्चर इज इंटायरली डिफरेंट। बिल्कुल दोनों जगह आपको, इसको आगे हम अभी बात करेंगे। तो कल्चर इज डिस्टिंक्टिव इन एवरी सोसाइटी। ईच ऑफ ट्राइब इज हैविंग देयर ओन डिफरेंट कल्चर। सभी संस्कृति, अगर आप ट्राइब्स में जाएं, हमारे सोसाइटीज में जाएं, तो आपको अलग अलग तरीके की संस्कृति हमने विकसित की हुई है, और अलग अलग सभ्यताएं और भाषाएं भी विकसित की है। शंकर सर सभ्यता की बात बोल रहे थे। सिविलाइजेशन इज द पीक ऑफ एनी कल्चर। जब हम संस्कृति को प्रैक्टिस करते करते एक हाईएस्ट लेवल को अटेन करते हैं तो उसको हम सभ्यता कहते हैं। जैसे हम एक सभ्यता की दौर से अभी गुजर रहे हैं। नेक्स्ट इज कल्चर हैज सोशल क्वालिटी। सामाजिकता है इसके अंदर में। पहले सोशियोलॉजी में लोग कंफ्यूज थे कि भाई, जब सोशियोलॉजी स्टडी स्टार्ट हुआ यूनिवर्सिटीज में, तो लोग कंफ्यूज थे वेदर सोसाइटी इज कल्चर और कल्चर इज सोसाइटी। क्या डिफरेंशिएट करें दोनों के बीच में। बाद में पता लगा सोसाइटी बियर्स कल्चर एंड कल्चर इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी सोसाइटी। तो सोसाइटी स्ट्रक्चरल फॉर्म है, और उसमें सामाजिकता के साथ, मतलब संस्कृति एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें हमारी रिश्तेदारी, नातेदारी और कई तरह के सिस्टम, उसमें सामाजिक प्रक्रियाओं को ये संस्कृति अंजाम देती है ना। वो समाज के अंदर ये सभी क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं होती हैं, तो ये सामाजिक है। नेक्स्ट इज इट इज आइडियल फॉर एवरी ग्रुप। अगर कोई आपके संस्कृति के विपरीत एक लाइन कहता है तो आप क्या कहते हैं? बेटे रेडी हो जाओ, मैं तुमको अभी नेस्तनाबूद कर दूंगा, है ना। मेरे संस्कृति का अगेंस्ट बोलेगा। मीन्स सभी संस्कृति में खास बात है, और हर सोसाइटी के लोग अपने संस्कृति को टॉप में मानते हैं, और वो यही वजह है वी शुड रिस्पेक्ट टू ईच एंड ऑल सोसाइटीज एंड देयर कल्चर। हमको सभी संस्कृति को बराबर सम्मान देना चाहिए, और रियली सभी संस्कृति उतने ही महत्वपूर्ण है जितनी मेरी, जितनी सबकी। ठीक है। तो सभी ग्रुप में क्वालिटी पाई जाती है कि वो अपने संस्कृति को हाईएस्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इसीलिए जब डिस्क्रिमिनेशंस की बात आती है, कुछ सोसाइटीज कहते हैं भाई हमें ये कहते हैं, हमें वो कहते हैं, जब हम अपने क्षेत्र को बदल देते हैं, है ना। ये अक्सर आपको न्यूज़पेपर्स में सुनने में आता होगा। तो हमें कभी इस तरह के डील नहीं करने चाहिए अपने लोगों से, किसी भी इंसान से, कि आप छोटे हैं या बड़े हैं। विश्व में जितने भी लोग हैं, इंसान हैं, ऑल आर इक्वल एंड देयर कल्चर इज इक्वली डिग्निफाइड।
ये हमको अपने अंदर लाना है और क्लासरूम में भी इस चीज को प्रोपेगेट करना है कि जब वो बच्चे बड़े हों तो दूसरे के समाज के और दूसरे की संस्कृति को इक्वल वेटेज दें, अपने जैसा वेटेज दें। ये तब हो पाएगा जब वो जाने कल्चर इज आइडियल फॉर एवरी ग्रुप। इस क्वालिटी को जब वो पहचानेंगे, कल्चरल सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स। अगर संस्कृति ना होता तो हम अभी भी फॉरेस्ट में होते, ठीक है। जितने सिस्टम आप देख रहे हैं वो सारे सिस्टम हम लोगों ने, सोसाइटल सिस्टम हमने डेवलप किए हैं संस्कृति के माध्यम से। फिर शादियां नहीं होती है ना, चीजें रेगुलेट नहीं होती, स्कूल सिस्टम नहीं होता, रेलवेज नहीं होता, पोस्टल नहीं होता, ठीक है। तो हमने सोसाइटी डेवलप करी, कस्टमरी लॉज बनाए। अगर मेरे फैमिली में आप आएंगे तो कैसे व्यवहार करेंगे, मैं राजस्थान में जाऊंगा तो खंभागढ़ी राम राम साजी बोलूंगा, गुड मॉर्निंग बोलने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। वहां पे मैं किसी को इंग्लिश में ज्यादा बोलूंगा तो नहीं चलेगा। केरला में जाऊंगा तो मुझे मलयालम में बोलना पड़ेगा, वनक्कम बोलना पड़ेगा, नमस्कारम बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम कल्चर जो है आपके सभी रिक्वायरमेंट्स को, सोसाइटी के रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करती है, रीजनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे भी। कल्चर हैज एडप्टिव क्वालिटी। संस्कृति में सभी चीज को एडप्ट करने की, समाहित करने की क्षमता होती है। आप देखिए हमारे देश में कितने लोग आए, डच आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, है ना, सभी लोग आए, यूनानी जाए, लेकिन सभी कल्चर को हमारी संस्कृति ने क्या कर लिया, समाहित कर लिया। इवन उनके भाषाओं को भी हमने समाहित कर लिया। आप लोग को मालूम है, आप लोग कभी कभी फारसी भी बोलने लगते हैं। आपका नक्शा, रकबा, खसरा, जितने जो डॉक्यूमेंट्स है ना रेवेन्यू के, ऑल ओवर द कंट्री, all revenue documents has been written in फारसी एंड अरबी। आज भी उन भाषाओं को आप यूज करते हैं। जो नक्शा, रकबा, खसरा, ना ही ये हिंदी है ना ही ये अंग्रेजी है। सारे जहां से अच्छा जो हम गाते हैं इकबाल, सर मोहम्मद इकबाल का, उर्दू में, ठीक है जी। तो संस्कृति के पास में एडेप्टेशन की क्वालिटी होती है। जैसे कोरोना काल में हम सब लोगों ने मास्क लगाना सीख लिया, कुछ कुछ मोमेंट पे सैनिटाइज करना सीख लिया, हाथ को धोते रहना सीख लिया, ज्यादा ग्रुप में लोग इकट्ठे ना हो वो सीख लिया। कैसे? क्योंकि हमारे संस्कृति में सीख के उसको इमीडिएट एडॉप्ट करने की कैपेसिटी है। मतलब संस्कृति कहीं पे रिजिड नहीं है। जो रिजिड हो रहे हैं कहीं पे तो वो पॉलिटिक्स का पार्ट हो सकता है, बट संस्कृति हमेशा एसिमिलेट करना जानती है, इंटीग्रेट करना जानती है, एडप्ट करना जानती है, अनुकूलन करना जानती है। नेक्स्ट इज कल्चर हैज द इंटीग्रेटिव क्वालिटी। आप सुन पा रहे हैं सब मुझे? कल्चर हैज द इंटीग्रेटिव क्वालिटी। इसमें सबको एक करने की, जोड़ने की ताकत होती है। जैसे मैं आपको अभी सर मोहम्मद इकबाल की बात कह रहा था, आप अनम्यूट करें 1 मिनट के लिए बस प्लीज, अगर कर सकते हैं तो। आप कर सकते हैं अपने आप को अनम्यूट? हाँ रंजय सर? जी सर, हो गया सर। बस 1 मिनट के लिए अनम्यूट कर दें सभी को। I wish to connect my country from Jammu and Kashmir to Kerala and from Rajasthan to Assam। मैं 11 स्टेट को अभी 2 लाइन के अंदर में देखिए कनेक्ट कर देता हूं। इससे ये बात साबित हो जाएगी कि कल्चर हैज इंटीग्रेटिव क्वालिटीज। 2 लाइन्स ऑफ सर मोहम्मद इकबाल इज अ मैजिक। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदोस्तां हमारा, हमारा
सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। अब सर मोहम्मद इकबाल पैदा नहीं हो रहे हैं हमारे स्कूलों में और घरों में भी। वेरी अनफॉर्चुनेट। हमें बनाना है फिर से ऐसे लोग जिनके एक लाइन से आई कैन सी योर फेस, पीपल आर चैंटिंग दैट सेंटेंसेस, बियॉन्ड कास्ट एंड क्रीड, बियॉन्ड जियोग्राफी। भारत के चारों कोने से मेरे टीचर्स, हमारे टीचर्स, डिस्टिंग्विश्ड टीचर्स, दे आर चैंटिंग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आपके जैसे किसी टीचर नहीं मेरे ब्लड में वो डीएनए डाला, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और यही वो वजह है जिसके एक साउंड में हमारा पूरा भारत देश एक छोर से दूसरे छोर तक एक वॉइस में एकत्र हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है। तो हम इंटीग्रेटेड हैं, इसे बार बार साबित करने की जरूरत नहीं है। ये तो क्लासरूम टीचिंग है। मैंने एक मेरे कंटेंट को बताने के लिए हमने साबित किया, और ये सच्चाई है कि हमारा डीएनए भी एक है और पूरे भारत एक है। ये संस्कृति की ही महिमा है, भारतीय संस्कृति की भी महिमा है, और वैसे संस्कृति की महिमा है कि पूरा ग्लोब जुड़ा हुआ है, पूरा भारत देश जुड़ा हुआ है। कल्चर इज बोथ सुपर इंडिविजुअल एंड सुपर ऑर्गेनिक। साइंटिस्ट कहते हैं, कल्चरल एक्सपर्ट कहते हैं कि ये सुपर इंडिविजुअल है, मीन्स एक आदमी संस्कृति नहीं बना सकता। इज ए ग्रुप बिहेवियर, इज ए प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप एंड सोसाइटी, नॉट टू से ग्रुप, रादर सोसाइटी। और सुपर ऑर्गेनिक है, लेकिन मैं कहूंगा कुछ तो ऑर्गेनिक भी है और कुछ सुपर ऑर्गेनिक है। जैसे इनटेंजिबल जो एस्पेक्ट है, जिन चीजों को हम देख नहीं पाते हैं, हमारे व्यवहार के एस्पेक्ट हैं, हमारे रिश्तों के एस्पेक्ट हैं, हमारी थिंकिंग है, ब्रेन की चीजें हैं, which we can't visualize, is definitely super organic, but depend to the organic materials, my brain, tangible heritages which we made, these all are organic also. कुछ तो ऑर्गेनिक भी हैं और कुछ सुपर ऑर्गेनिक भी हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। If you wish to study your place, if you wish to study your own culture, your surrounding, I am giving you certain points through this lecture, through this discussion. Components of culture, very important. You can study your surrounding and your neighborhood. आपके आसपास में आपकी सोसाइटीज, अदर सोसाइटीज भी हैं, उनको आप स्टडी कर सकते हैं पीसफुली। सिंपल डायरी और पेजेज लेके, ज्यादा टेक्निक्स की जरूरत नहीं है, ज्यादा आपको इंस्ट्रूमेंटल होने की आवश्यकता नहीं है। यू कैन टॉक विथ योर ओन पीपल, अपने लोगों से बातें करके आप स्टडी कर लेते हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे रहा हूं। ऑल ओवर द वर्ल्ड, the whole cultural component can be divided in 4 aspects. The first is cultural trait or cultural element, we can say. The smallest unit of any culture through which you can recognize the society, their place, and to their culture. I repeat, cultural trait is the smallest unit of any culture through which you can recognize that society, that place, and to their culture. संस्कृति की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसके माध्यम से आप उन लोगों को, जो वो संस्कृति प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस स्थान को और उस सोसाइटी को, तीनों को पहचान सकते हैं, है ना मैजिक। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आई वुड रिक्वेस्ट यू
to close your eyes for 1 minute to understand about the cultural trait. कुछ चीजें हमको आंखें खोल के दिखाई देती हैं और कभी कभी कुछ चीजें आंखें बंद करके दिखाई देती हैं, और एग्जैक्टली आपकी आंखें भी वही देखती हैं जो आपका ब्रेन अलाउ करता है. Whether you accept my this sentence, आपको वही चीजें दिखाई देती हैं जो आपका ब्रेन आपको अलाउ करता है. ठीक है, तो कल्चरल ट्रेट, इफ यू क्लोज्ड योर आईज, अगेन आई रिक्वेस्ट यू, ट्राई टू ब्रिंग इंडियन पॉलिटिकल मैप इन योर ब्रेन. आप अपने दिमाग में, अपनी जहन में भारत के नक्शे को लाएं. थैंक यू फ्रेंड्स, रियली यू आर ए जेन्युइन टीचर, वेरी जेन्युइन ग्रुप. जब हम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं तो इजी हो जाता है टीचिंग क्लासरूम में. तो आप तो अवेयर हैं, मास डीलिंग में ये होता है. थैंक यू. आपने आईज क्लोज किया है. I would chanting 4-5 words, few of sentences, and I am taking you to the journey of India. आपको 2 मिनट 1 मिनट के अंदर में भारत भ्रमण पे ले चलता हूं मैं आपको कल्चरल ट्रेट के माध्यम से. पता नहीं कितना सक्सेसफुल होगा इस माध्यम में, लेकिन फिर भी क्लासरूम में हम जब करते हैं काफी इंटरेस्टिंग होता है, ये आप एज्यूम कर सकते हैं. आई एम चेंटिंग दैट वर्ड्स. भारत के नक्शे को अपने दिमाग में जरूर रखें. अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम नमस्कार, वालेकुम सलाम. नीड नॉट टू रिप्लाई प्लीज, आप रिप्लाई ना करें. अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल. पाजी तुसी कैसे हो? खंभा गड़ी, राम राम साजी. नमस्कार मित्रों, मैं आपके मंगलमय भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आई विश यू ऑल द बेस्ट. वनक्कम अन्ना गारू नंद्री. Now please open your eyes. If I would ask you, when I say अस्सलाम वालेकुम, जैसे मैंने कहा सलाम वालेकुम, आप कहीं नॉर्दर्न एंड पे जम्मू कश्मीर एरिया में अपने आप को पाते हैं, या जो लोग जानते हैं कि आसाम इज सेकंड पॉपुलस स्टेट इन इस्लामिक पॉपुलेशन, तो कुछ लोग अपने आप को आसाम में पाते हैं. क्यों? क्योंकि उस वर्ड का जादू है. अस्सलाम वालेकुम हमारे इस्लामिक ब्रदर्स और उनकी सोसाइटी में ये ग्रीट करने का, ग्रीटिंग्स का तरीका होता है. मैंने जब कहा सत श्री अकाल, पाजी तुसी कैसे हो, आप पंजाब पहुंच गए, टर्बन लगाए हुए हमारे मित्रों से मिल लिए, आपने सरसों का लहलहाता खेत देख लिया, कुछ लोगों ने सरसों का साग फील भी कर लिया होगा जो लोग वहां गए हैं. फिर मैंने कहा खंभा गड़ी राम राम साजी. जब आप वेस्टर्न राजस्थान में, मैं तो सेंसस 2001 में राजस्थान वेस्टर्न बॉर्डर एरिया में घूम रहा था, तो गांव में हमारे हुकुम हुआ करते थे. हुकुम, वो बड़े बड़े मूंछ और मजबूत हड्डियों वाले हमारे राजस्थान के, हमारे कीन एंड कीथ, हमारे फैमिली मेंबर्स, वो हमें कहते हैं, जब हम कहते हैं राम राम साजी खंबा गड़ी, वो कहते हैं मेरे गांव में कौ डॉल रियास है. मेरे गांव में बहुत प्रेम से कहते हैं, बहुत श्रद्धा से कहते हैं, और वो ग्रीट करते हैं. तो आप राजस्थान में डिजर्ट एरिया में पहुंच जाते हैं, रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं सिंगल वर्ड के माध्यम से. जब मैं अंग्रेजी कहता हूं गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट,
तो आप जहाँ पे ब्रिटिश टाइम में इंग्लिश का इम्प्रेशन ज्यादा रहा, ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा हुआ, और हमारे लोग जहाँ पे इंग्लिश ज्यादा प्रचलन में ले आए, जैसे आप केरला पहुंच जाते हैं, गोवा पहुंच जाते हैं, मिजोरम पहुंच जाते हैं, तो ऐसे जगह में या तो वो हमारे लोकल भाषा या सीधा इंग्लिश फिर बातें होती हैं सेकंड लैंग्वेज के रूप में, आप उन स्टेट्स में पहुंच जाते हैं जब इंग्लिश की बात आती है। फिर मैं हिंदी में मैंने कहा नमस्कार आप लोगों को शुभकामनाएं, तो आप गंगा बेल्ट में पहुंच जाते हैं हिंदी स्पीकिंग एरिया में, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, ये पूरा गंगा बेल्ट में जहां हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं उस क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। फिर मैंने लास्ट में एक लैंग्वेज चेंज कर दिया, द्रविडियन में आपको मैंने कहा वनक्कम, अन्ना गारो, नंद्री। सडन आप पेनिनसुलर इंडिया में पहुंच गए, आप समुद्री नीचे हमारे साउथ रीजन में पहुंच गए जहां पे हम वनक्कम मेनली कहते हैं। सो दिस इज द मैजिक ऑफ कल्चरल ट्रेट। एक शब्द का जादू है जिससे आप वहां पहुंच जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको अभी और एग्जांपल दे दूं, लावनी, एक ही वर्ड कहा मैंने, लावनी एक डांस का नाम है, भारतीय डांस परंपरा, नृत्य परंपरा है। लावनी कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में। मैं कहूँ कालबेलिया राजस्थान में, बिहू आसाम में, है ना। एक एक शब्द से हम उस राज्य में, उनकी संस्कृति में, उनके बीच में पहुंच जाते हैं। तो चलिए इसको हम कहते हैं कल्चरल ट्रेट। ये कुछ मैंने डेफिनेशंस बनाए थे, लिए थे, एडप्ट किया था कहीं से। आप इन सब को आपसे शेयर कर देंगे, पावर पॉइंट्स आपको पहुंच जाएगा ये, तो सबको आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बट कल्चरल ट्रेट्स इज हैविंग सर्टेन क्वालिटीज, इसको आप पढ़ें आगे। देयर विल बी स्टोरी एंड माइथोलॉजी, हर एक शब्द के पीछे, भावनाओं के पीछे एक स्टोरी होती है, जगह के अनुसार, संस्कृति के अनुसार ये बदल जाती है, सेकंड पॉइंट है। और ये एक सिस्टम की तरह काम करती है, ये अकेले नहीं होती, बिहू अकेला नहीं है। बिहू इन आसाम इज नॉट ओनली अ डांस, रादर इज अ रिचुअल। हमारे देश में जो डांस फॉर्म है, अगर मैं भरतनाट्यम की बात करूं, कथक की बात करूं, ओडिसी की बात करूं, केवल ये डांस फॉर्म नहीं है, दिस इज द वे ऑफ लाइफ। जीवन जीने की कला है, इसके पीछे रिचुअल्स हैं, स्टोरी है और बहुत सारी कहानियां हैं जो हमारे इंडियन माइथोलॉजी, हमारे इंडियन वे ऑफ लाइफ से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ें कल्चरल ट्रेट से। देखिए कुछ मैंने सिंबल्स लिया था, अगर आप ये सिंबल दिखाते हैं क्रॉस का तो आप समझ जाते हैं ये क्रिश्चियनिटी की बात, ओम दिखाते हैं आप समझ जाते हैं हिंदुइज्म की बात हो रही है, महादेव की बात हो रही है, जब सिखिज्म की बात हो रही है, ठीक है, इस्लाम की बात हो रही है, ठीक। तो ये ट्रेट्स हैं, ये हमने एग्जाम्पल्स ले लिए। एक और एग्जाम्पल लें, आप जब किसी लेडी में, किसी पार्टी में, प्रोग्राम में या किसी फैमिली गैदरिंग में आप जाते हैं तो आप यहाँ पे मांग में एक सिंदूर देखते हैं। हिंदू लेडीज, मैरिड लेडीज, they put one kind of powder that is called vermilion, और हमारी हिंदू सनातन संस्कृति में हम इसको सिंदूर कहते हैं। कहते हैं किसी और सोसाइटी में होता है ये नहीं। तो अगर यहाँ पे कोई लेडी जब सिंदूर लगाती है तो वो लेडी हम कहते हैं शादीशुदा हिंदू महिला, मैरिड हिंदू विमेन। तो मैरिज सिस्टम में, इंडियन मैरिज सिस्टम में, हिंदू मैरिज सिस्टम में जो वर्मिलियन हम हमारे ट्रेडिशन में सिंदूर जो लगाते हैं, दैट इज स्पेसिफिक कल्चरल ट्रेट। सिंगल पॉइंट से हम पहचान सकते हैं कि ये हमारी संस्कृति की पहचान है, मैरिज सिस्टम की पहचान है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को लें, हम थोड़ा स्पीडी चलें, समय अब और मेरे पास 10 मिनट का समय है, इसमें जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दूं मैं। कल्चरल कॉम्प्लेक्स,
These are assembling of cultural traits for meaningful reflections. हमारे संस्कृति में बहुत सारी चीजें मीनिंगफुल तरीके से होती हैं, सिस्टमैटिक होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। बिना कारण कई चीजें नहीं होती हैं। तो साइंस की तरह कल्चर में भी सिस्टमैटिक्स है, रिदम है। इफ यू लर्न म्यूजिक यू हैव टू गो क्लास, आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक सीखने के लिए, भरतनाट्यम सीखने के लिए। तो यूं ही सब नहीं बना है, सब सिस्टमैटिक है, ठीक है। सो कल्चरल कॉम्प्लेक्स, एक मैं आपको बस पढ़ दूं फिर आगे। कल्चरल कॉम्प्लेक्स इज अ होल सेट ऑफ कल्चरल ट्रेट्स दैट क्लस्टर टुगेदर इन मीनिंगफुल इंटररिलेशनशिप, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल पे जाएं तो आपको एग्जाम्पल दिखाई देगा। ये कोई समझ पाया ये क्या है? ऊपर लिखा है देखिए, 16 श्रृंगार। इफ यू सी मैरिज रिचुअल्स अमंगस्ट हिंदूज के बीच में जब आप मैरिज रिचुअल देखेंगे तो हिंदू मैरिड वुमेन केवल एक सिंदूर नहीं लगाती है, शी वियर्स कलरफुल बैंगल्स, चूड़ियां कलरफुल पहनती हैं, बहुत कलरफुल साड़ी पहनती हैं, यहाँ माथे पे भी एक बिंदी लगाती हैं, कुंडल्स पहनती हैं, नाक में स्टड्स पहनती हैं, मावर लगाती हैं, पायजेब पहनते हैं। माय गुडनेस, देयर आर सो मेनी थिंग्स। बट इन इंडियन ट्रेडिशन वी से 16 आइटम्स, 16 आर रिकमेंडेड। 16 चीजें रिकमेंडेड है, जिसको 16 श्रृंगार कहते हैं एक शब्द में, आप सभी जानते हैं। तो 16 श्रृंगार जो है कल्चरल कॉम्प्लेक्स है, जिसको आप स्टडी कर सकते हैं। हर एक समाज में इस तरह की अलग अलग रिचुअल आपको दिखाई देंगी, ठीक है। अगर हम कुछ आगे तो आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको 4-5 आइटम्स एक कॉम्प्लेक्स के रूप में दिखाई देगा, ठीक है, जिसके अंदर में वो पान पत्ता भी आता है, वहाँ मंगलसूत्र भी फोटोग्राफ में रखा हुआ है, सिंदूर भी रखा हुआ है, चूड़ियां हैं, मेहंदी है, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं एट ए टाइम। और एक कल्चरल कॉम्प्लेक्स का मैरिज सिस्टम का, हिंदू मैरिज सिस्टम का पार्ट है ना। जैसे मैं आगे और डिस्कस करूं इसको, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर हम एक एग्जांपल और की बात करें तो इस्लाम प्रैक्टिसेस में देखेंगे 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, ठीक है। अगर आप 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम देखेंगे, इसको हम अगर कल्चरल कॉम्प्लेक्स के रूप में लें तो आपको कुछ एग्जांपल्स मैं बताऊं। यहां से हम समझ सकते हैं, जब इस्लाम प्रैक्टिसेस में जो इस्लाम फॉलोअर्स हैं हमारे, वो 5 पिलर्स को प्रैक्टिस करते हैं, इसको हम उनके कल्चरल कॉम्प्लेक्स के रूप में समझ सकते हैं। जैसे आपने हिंदुइज्म में अगर पहले देखेंगे तो जब हम मंदिर घुसते हैं, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, तो जब रिचुअल्स इन इस्लाम देखें तो पहला आता है कलीमा, जो वो चैंटिंग करते हैं वर्शिप के रूप में, अल्लाह को जब वो याद करते हैं, अपना प्रेयर अदा करते हैं, तो कलीमा पढ़ते हैं वो। तो ये एक कल्चरल ट्रेट है। दूसरा जब आप देखेंगे नमाज, वो 4 टाइम नमाज अदा करते हैं। फिर उसके बाद आता है रोजा। रोजा को ना मैं फास्टिंग कहूंगा ना उपवास कहूंगा, रोजा इज रोजा। देयर आर स्पेसिफिक रिचुअल्स बिहाइंड द रोजा। तो मैं अगर इसको फास्टिंग कह दूंगा तो इनजस्टिस हो जाएगा, उपवास कह दूंगा तो भी मुझे लगता है कि इनजस्टिस हो जाएगा।
इट्स रोजा, ये रोजा है जो सिर्फ इस्लामिक कल्चर में फॉलोअर्स प्रैक्टिस करते हैं। आगे है ज़कात, अपने टोटल अर्निंग का कुछ पार्ट वो नीडी गरीबों को और पब्लिक वेलफेयर में डोनेट कर देते हैं, दे देते हैं, वो ज़कात कहलाता है। और एक सच्चा मुसलमान अपनी जिंदगी में चाहता है कि जब सभी पारिवारिक प्रक्रियाओं से गुजरता है, वो चाहता है हज के लिए मक्का मदीना जाए, उनकी दिली इच्छा होती है मुस्लिम सोसाइटीज में। तो ये 5 पिलर्स को अगर हम एक साथ एक सिस्टम के रूप में देखें तो ये कल्चरल कॉम्प्लेक्स के रूप में जाना जाएगा, और अगर इसको हम एक एक करके देखें तो ये कल्चरल ट्रेड के रूप में देखा जाएगा। इसी तरीके से अगर आप हिंदू मंदिरों को देखें तो हमारे सिस्टम भी सनातन धर्म में, जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो बहुत सिस्टमैटिक है ना, सारी रिचुअल्स बहुत सिस्टमैटिक है, और कई बार जब आप स्टडी करेंगे बहुत साइंटिफिक भी है। ठीक है, सभी रिलीजन ऐसे ही नहीं बने, उनके प्रैक्टिसेस साइंटिफिक हैं। जैसे मैं टेंपल और हिंदू वर्शिप के रिचुअल्स को डिस्कस करूंगा। जब आप मंदिर में जाते हैं तो अपने जूते चप्पल बाहर निकाल देते हैं, अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं कि नहा के जाना है। जब आप जूते छू के निकालते हैं तो आपको हाथ पैर धोना है। आपके ड्रेस मॉडेस्टली ड्रेस्ड होना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनते हैं आप, ठीक है, तब आप मंदिर के अंदर घुसते हैं। उसके बाद आप जब घुसते हैं अंदर में तो ऊपर में एक ब्रास का, एक तांबा या पीतल का एक घंटी टंगा होता है, बेल टंगा होता है, आप उसको बजाते हैं रिचुअल के रूप में। मीन्स आप ऑफर करते हैं प्रेयर कि भाई मैं आ गया, अलर्ट करते हैं मैं टेंपल में आ गया। उसके बाद आप सैंक्टम सैंक्टोरम इंग्लिश में कहते हैं, जिसको हम हिंदी में गर्भगृह कहते हैं, जहाँ पे कि मेन डेटी हमारे गॉड गॉडेसेस होते हैं, उस एरिया को मंदिर का हम गर्भगृह कहते हैं। जब आप गर्भगृह में पहुंचते हैं तो सबसे पहले आप अपना माथा टेकते हैं या वहाँ हाथ जमीन तक टच करके वहाँ प्रणाम करते हैं। उसके बाद फ्लावर ऑफर करते हैं, फूल ऑफर करते हैं, ठीक है जी। और आइकॉन को, जो हमारे सामने देवी देवता होते हैं, उन्हें आप नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। और हमारे मंदिरों से पूजा से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, उपासना, हर गॉड गॉडेसेस की, देवी देवताओं की अलग है, भगवानों की अलग है। उपासना कभी आप निर्जला व्रत भी करते हैं, कभी पानी पी के करते हैं, कभी हाफ डे करते हैं, कभी फुल डे करते हैं। ये आप सब जाने कैसे कैसे करते हैं, बहुत डाइवर्सिटी है इसके बीच में। तो उपासना करते हैं, वैरायटी ऑफ प्रसादा बांटते हैं हम। तो जब लड्डू खाते थे ना बचपन में, छीन छीन के खाते थे कि नहीं खाते थे? गणपति बप्पा मोरिया जब हमारे यहाँ होता था तो हम जब बच्चे थे तो लूट लूट के लड्डू खाते थे। तो वो जो लड्डू है वो एक कल्चरल ट्रेट है, लेकिन सनातन में कभी कभी हम 56 भोग चढ़ाते हैं, 56 आइटम्स ऑफ प्रसादा। तो वो जो 56 भोग टर्म है वो कल्चरल कॉम्प्लेक्स है हमारे रिचुअल्स का, पूजा का। फिर हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं मंदिरों में, कहीं सब लोग सोसाइटी के लोग एकत्र होके। कभी कभी हम डांस भी करते हैं, हमारे प्रभु को, इष्ट देव को, भगवान को खुश करने के लिए हम डांसेस करते हैं। और आज आप जो क्लासिकल डांसेस देख रहे हैं हमारे देश में, यहाँ पे भी डांस फॉर्म आएगा आपके सामने में, सत्रिया, वो सभी डांस फॉर्म हमारे पूजाओं से और रिचुअल से, मंदिरों से जन्म हुआ है, उनका सतरज से जन्म हुआ है। एक एक करके सारी चीजें आपके सामने आएंगी। तो वर्शिप सिस्टम टेम्पल्स के और वर्शिप सिस्टम अगर आप मस्जिद के, गुरुद्वारे के या चर्च के देखें, सभी में साइंटिफिक चीजें भी हैं, बिलीफ है, कस्टम है, और ये सब कल्चरल ट्रेड्स कॉम्प्लेक्स के रूप में हमारे सामने सिस्टमैटिक आते हैं। तो मैं ज्यादा एग्जाम्पल न लूं। अब फिर जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, देखिए कल्चरल पैटर्न। थोड़ा साइंटिफिक सा जब होगा तो बोरिंग होगा,
एग्जाम्पल्स में जब इंडियन पर्सपेक्टिव में आते हैं तो मजा आने लगता है ना, क्योंकि अपने बारे में हम बातें करते हैं। तो कल्चरल पैटर्न की जब आप बात करते हैं तो मैं आपको सीधे ले चलता हूं जम्मू एंड कश्मीर। फ्रेंड्स, हम लोग अपने अपने जियोग्राफी में ना अपने तरीके से रहते हैं, तभी खुश रहते हैं। थोड़ा अभी मेरे ऊपर टाइम का भी प्रेशर आ चुका है, तो मैं कल्चरल पैटर्न को आपको डिफाइन कर दूं फटाफट। डिफाइन क्या, एग्जांपल दे देता हूं। व्हाट इज कल्चरल पैटर्न? These are assembling of the various cultural complex in systematic way adopted by any society at certain region. कुछ एरिया में इस तरह के ट्रेड्स और कॉम्प्लेक्स मिलके हमें मीनिंगफुल लाइफ, वे ऑफ लाइफ बनाती हैं, जिसको हम कल्चरल पैटर्न कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल ले जाऊं जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की ओर, जहाँ पे फ्रिज टेम्परेचर होता है दिसंबर जनवरी में, ठंड के वक्त में वहाँ लाइफ कैसे होती है, एक एक करके हम 2-3 पॉइंट्स देखें। वो लोग फुल साइज का एक कोट पहनते हैं, ब्लैंकेट नुमा उनका जो फैब्रिक होता है और पूरा शरीर उससे ढका होता है, उसको वो लोग जम्मू कश्मीर में फैरन कहते हैं। क्या कहते हैं? फैरन। फैरन जो होता है पूरा बॉडी कवर्ड होता है, और फैरन के अंदर भी एक छोटा सा स्मोक करने के लिए, धुआं करने के लिए एक आग जैसा जला के वो अपने चेस्ट के पास रखते हैं। उसको हम कांगड़ी कहते हैं, टू कीप देयर बॉडी वार्म इन फ्रिज टेम्परेचर। 0 टेम्परेचर, -डिग्री टेम्परेचर भी होता है कभी कभी वहां पे। तो उस वक्त अपने आप को जिंदा रखने के लिए, सरवाइव करने के लिए ये स्ट्रेटजी हमारे पूर्वजों ने एक्वायर किया। अपने रूम में, लिविंग रूम में एक कांगड़ी जला के रखते हैं, कांगड़ी, जिससे कि रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहे। बिग साइज जो मैमल्स होते हैं, उन मैमल्स के गोश्त खाते हैं वो। चाहे आप सिक्किम भी देख लें, जम्मू कश्मीर देख लें, तो ये लोग बड़े साइज के एनिमल्स के गोश्त खाते हैं, जिससे शरीर गर्म हो। कहीं कहीं पे ये इंग्लिश में जिसको पाइप कहते हैं, मैं तो हमारे इंडियन हुक्का को पाइप नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि पाइप जो है ना छोटे छोटे होते हैं, और जो हमारा इंडियन हुक्का होता है जी वो बहुत बड़ा सा होता है। तो हमारे लोग हुक्का पीते हैं हिमालय में, नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है, वो भी ठंड से बचने के लिए वो हुक्का पीते हैं। ये सारी जो स्ट्रेटजी हैं ये ठंड से बचने के लिए है। और प्रकृति ने वहां पे अगर खाने में देखें तो प्रकृति ने वहां पे ड्राई फ्रूट्स दिया हुआ है, बादाम, अखरोट भरमार दिया है, अबंडेंट दिया है। जानते हैं क्यों दिया है? हिमालय में ऊंचाइयों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, आप जानते हैं ना। तो जहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, साइंस कहता है ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ये ऑक्सीजन के पैकेज होते हैं, इनमें ऑक्सीजन बहुत प्रचुर मात्रा में होती है। वो ऑक्सीजन इनके शरीर में जाती है ये ड्राई फ्रूट्स खाने से, तो उनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा भी मेंटेन होती है। ये प्रकृति ने भी उनके लिए व्यवस्था दिया है, ठीक है। तो ये कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए पैटर्न ऑफ कल्चर, इस तरह के संस्कृति को वो जीते हैं। अब चलिए हम सीधे साउथ चले जाते हैं। अगर हमको समझना है इस बात को तो हमें एक्सट्रीम साउथ में जाना पड़ेगा, तमिलनाडु में, केरला में। आप इमेजिन करिए तमिलनाडु में और केरला में हमारे जो लोग हैं भारत में, कन्याकुमारी एरिया, लास्ट समुद्री एरिया में, वो कैसे रहते हैं। वहां पे ज्यादातर समय ह्यूमिड टेम्परेचर होता है ना, नमी होती है, और साथ में जैसे आप 35 डिग्री टेम्परेचर में ही सफोकेशन होता है, मुश्किल होता है। वो एक कपड़े को 5 घंटे 4 घंटे पहनना कठिन हो जाता है। उन परिस्थितियों में रहने के लिए वो क्या करते हैं, अगर हम देखना चाहें तो वो धोती पहनते हैं, सफेद कलर का धोती पहनते हैं, नीट वाइट वो कुर्ता पहनते हैं,
चावल के साथ दही खाते हैं। दे जनरली यूज कर्ड विथ राइस, है ना, डाइजेशन को प्रॉपर रखने के लिए दही चावल खाते हैं। वो बिल्कुल सफेद, ताकि वो धूप को, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब ना करे, इसलिए सफेद धोती और थोड़ा खुला खुला सा कपड़े पहनते हैं। आप समझ रहे हैं पैटर्न क्या है, किस तरह का पैटर्न हम जियोग्राफी के अकॉर्डिंग हमारे फूड हैबिट, हमारे ड्रेसेस ऑफ वे ऑफ लाइफ हम बदल लेते हैं। एक बार आप सोच के देखिए कि दिसंबर के महीने में हमारे तमिलनाडु के कुछ लोगों को अगर हम जम्मू एंड कश्मीर में इन्हीं तमिलनाडु वाले ड्रेस में शिफ्ट कर दें, और गर्मी के दिनों में, ठंड के दिनों में हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को तमिलनाडु में शिफ्ट कर दें फैरन के साथ और कांगड़ी के साथ, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी लाइफ, है ना। तो ये पैटर्न ऑफ लाइफ, कुछ लोग हंस रहे हैं, बिल्कुल हंसिए। मैं ये हंसने के लिए ही कहा, आप लोगों से शेयर किया कि पैटर्न ऑफ लाइफ हमने जियोग्राफी से एक्वायर किया है टीचर्स, और ये कंपोनेंट्स हमको बच्चों को बताना है। लास्ट 2 मिनट्स, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपका एक्स्ट्रा समय ले रहा हूं, मैं माफी भी चाहता हूं इसके लिए, मुझे समय में खत्म करना चाहिए। कल्चरल एरियाज, मैं इंडियन पर्सपेक्टिव की ही बातें कर रहा हूं, इसलिए इंडियन की ही बातें करूंगा। हिमालय अपने आप में एक अलग संस्कृति देती है हमारे देश को, जो हमने अभी डिस्कस कर लिया, आगे डिस्कस नहीं करूंगा मैं। अब जब हम नीचे आते हैं हिमालय से, तो थार डेजर्ट, थार के रेगिस्तान, है ना, ब्राउन कलर होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है। लोग तो आर्मी में कह रहे थे कुछ समय में 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया था। तो हमारी लाइफ वहां कैसी होगी, दूर दूर तक देखें लोग दिखाई नहीं देते, और सूखा होता है, एरिड जोन होता है, वहां लोग कैसे जीते हैं। तो थार रेगिस्तान ने हमारी संस्कृति को, वहां पानी लेने के लिए लोग, अभी तो कुछ व्यवस्था हुआ है हमने सुना है, लेकिन पानी लेने के लोग 20-20 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर बर्तन लेके घरों से निकलते हैं सवेरे 4 बजे 5 बजे। ये रेगिस्तान की लाइफ है। फिर उसके नीचे अगर आप जाएं थोड़ा राजस्थान से नीचे, रन एंड कच्छ, इंटायरली डिफरेंट जियोग्राफी, फ्लोरा एंड फना गिवन बाय द नेचर एंड नेचुरल हॉटस्पॉट, रन एंड कच्छ, गुजरात। फिर उसके नीचे थोड़ा जाएं तो वेस्टर्न घाट ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। वेस्टर्न घाट जो कर्नाटका और यहाँ का है, महाराष्ट्र का, ये भी हमारे लोगों को और विश्व के एनिमल्स को एक डिफरेंट तरह की जियोग्राफी प्रदान करती है, और इंसान को नए संस्कृति को विकसित करने के लिए शेल्टर देती है। वेस्टर्न घाट, ठीक है। पेनिनसुलर इंडिया, समुद्री जो हमारा क्षेत्र है, वो इंटायरली डिफरेंट संस्कृति हमें विकसित करने के लिए उत्साहित करती है, प्रोत्साहित करती है। हमारे घरों को भी हम सजाने के लिए मोलस्कन शेल्स यूज करते हैं। खाने में हम फिश खाते हैं। कुछ एरिया में समुद्री में आप देखेंगे जहाँ पे समुद्र है, जैसे उड़ीसा में, बंगाल में, कुछ एरिया में, वहाँ के कुछ एरिया में ब्राह्मण्स नहीं खाते नॉनवेज, लेकिन जहाँ समुद्री एरिया में कुछ ब्राह्मण्स खाते भी। उसकी वजह यह है कि वो समुद्र से सी फूड नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे। सेंट्रल एरिया में, सेंट्रल इंडिया में देखिए, सतपुड़ा के डीप फॉरेस्ट हैं, ठीक है, जहाँ पे पचमढ़ी और सारी शेल्टर्स हैं, भीमबेटकाज हैं, वो सब एरिया है जो हमारे एंशिएंट लोगों को शेल्टर दिया। और नॉर्थ ईस्ट की बात मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट आप जरूर जाएं उन स्टेट्स में। Each of state is having different geography, different flora and fauna, and different tribes, Indian tribes बिल्कुल अलग है। और जब आप each of state जब आप स्टडी करते हैं, जब आप वहाँ टूरिज्म में जाते हैं, तो आपको नई चीजें सीखने को मिलती हैं। उसकी वजह वहाँ की जियोग्राफी है। जैसे आप त्रिपुरा में चले जाते हैं, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन बम्बू का हमारे यहाँ त्रिपुरा में होता है।
तो हम कहते हैं त्रिपुरा आसाम में कि हमारा जन्म बम्बू के माध्यम से, जो बम्बू के स्ट्राइप से हमारा अम्बेलिकल कॉर्ड काटा जाता है, और जब मेरा डेथ अगर वहां होता है तो बम्बू से ही मेरी लास्ट जर्नी कब्रिस्तान की तरफ होती है। तो ये बम्बू की महिमा हमारे लाइफ में है। जब हम बिहू डांस करते हैं तो उसमें बम्बू के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जब हम चिकन पकाते हैं तो बम्बू सूट्स के अंदर में डाल के हम चिकन पकाते हैं, खाना पकाते हैं। तो ये कल्चरल एरिया, आप सुन रहे थे ना, नीलगिरी हिल्स, मेरे सदर्न रीजन से फ्रेंड्स हैं, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो इनजस्टिस होगा। नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु, टोडा, कादर, पलियन, इरुला, ये हमारे इंडिजिनस लोग हैं, प्योर इंडियन लोग हैं। अंडमान निकोबार, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे भारत के संविधान में ही लिखा है उनका नाम। हमारे सब ब्रदर सिस्टर्स अंडमान एंड निकोबार में रहते हैं। ओंगी, जारवाज, सेंटनेलीज, छोटा नागपुर का पठार, झारखंड बिहार का प्रदेश, जहां हमारे इंडिजिनस हमारे ब्रदर सिस्टर्स रहते हैं, हो, संथाल, खड़िया, मुंडा, ठीक है। जैसे सेंट्रल इंडिया में आप देखेंगे गोंड, हाँ, कंवर, ओरांव। राजस्थान में देखेंगे भील, भिलाला, मीणा। नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे बहुत सारे असंख्य ट्राइब हैं, पर फिर भी गारो, खासी, जयंतियाज, हाँ, बोडोज, टीवाज, ये बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे, नागाज, मिजोज, लूसाइज। मैं तो गिनता रहूंगा, शाम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नॉर्दर्न में भी अगर हिमालय, तो मैं ऐसे अगर डिवाइड करूं पूरे देश को, तो संस्कृति विभाग में तो हम 8 जोन बांटते हैं, 8 जियोग्राफिकल एरिया एंड कल्चरल जोन। आप स्टडी करें, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के वेबसाइट्स में जाएं। मैंने जो भी कच्चा पक्का आप लोगों के साथ डिस्कशन किया, पावर पॉइंट हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। इन माध्यम से आप स्टडीज कर पाएंगे। कंपोनेंट्स मेरे पास बहुत सारे थे, जो हम लोग तो बात करते रहेंगे। बाद में आप फिजिकल मोड में भी ट्रेनिंग में आएंगे, और मेरी कोलीग अभी नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी हैं। और आप सभी से थैंक यू फॉर योर पेशेंस। मैं उनका इंट्रोडक्शन करा दूंगा, आप काइंडली पहले चाय पी के आए, ठीक है। आपको हम लोग 10 मिनट का समय देते हैं, आप प्लीज जल्दी जल्दी आ जाएं, बस निवेदन है चाय पी के। और आपके पेशेंस के लिए बहुत सारा थैंक यू आप लोगों को, हमें ज्वाइन करने के लिए भी थैंक यू एवरीवन।